everything. He is author of book Success Strategies Decoded in English and Hindi, available on Amazon, Flipkart, and other online e-commerce platforms. He is authoring another book on consciousness. He has been instrumental in the life transformation of more than 10,000 people through his personal and group teaching. Vinay's academic qualifications include Master in Business Administration. He is the founder director of Pentachrome Technology Private Limited, a software development and skill development training company. He is also director of Newbies Coach, a venture of Thinkman Learning Solution Provider Limited, providing an end-to-end training solution, and Unisys Global, an overseas education consulting company and career coaching. Vinay Sharma is certified by the Junior Chamber International as a certified international trainer. He is passionate about reading, photography, music, and traveling. Thank you. Thank you, Junior JC Arna Goyal, for this introduction. I also recognize the presence of our ZVP Hitesh Jain, sir. Thank you, sir, for joining this session. Thank you, ma'am. Now I would request Vinay Sharma, sir, to start with the session. Thank you, sir. Over to you. Thank you so much, Ashima ji, all the members of JCI Kota Dynamic, and all my dear friends for giving me this opportunity to be here on this morning, the auspicious morning. And I just like to ask a couple of things before I start. That which is the language you will be comfortable in? तो मैं उसी हिसाब से अपने session को लेके चलूँगा. So whatever language is comfortable in general. Should it be mixed language or English or Hindi, whatever? मेरे को चौथी language नहीं आती है, मतलब third language नहीं आती है. Okay, bilingual is fine. Thank you so much for this feedback. So, all right, so let's begin the journey then. I hope all of you are excited. So, today I'll not use much of the PPTs, and I just want to talk to you. So this 90 minutes, I want to use it for the best of our interest. तो हम क्या करेंगे कि पहले लगभग 1 घंटे से सवा घंटे में we'll be talking, and I'll keep my last 15 minutes for the question and answers. And I would request you to ask as many questions, because I believe and I'm sure I'll be able to answer all your questions, whatever it is. It may be related to your business, it may be related to your personal problems. And I'll not just answer your problems, but I'll also try to give you a relevant solutions for the problems. Because being a master hypnotist, being a mind trainer, I have been dealing with a lot of people as a coach, as a personal coach, dealing with their personal problems, and then simultaneously we need to provide them a legitimate solution which is permanent. So by doing a little tweak in the state of mind, we can be, we can just make a lot of difference in a human life. So now I would like to just take on to the topic, why I selected this. Why did I pick this topic? Zero is a big opportunity. Because this is a time of pandemic. Everything is locked down. Businesses are almost on lockdown right now. People are having a tough time because पहली बार जब लॉकडाउन हुआ था तो शायद लोग काफी एक्साइटेड थे. उनको लगता था कि बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाने वाला है, इसलिए they were in a entertainment mode. सब लोग आराम से बैठ के टीवीज देखते थे, फैमिली टाइम, they used to watch movies together. उनके पास कुछ सेविंग्स थी तो they were feeling safe. पर जैसे जैसे समय गुजरा, अब कुछ चीजें थोड़ी सी टफ नजर आने लगी हैं, and people have started thinking a little differently now. और इस सिचुएशन में अपने आप को पॉजिटिव बना के रखना और उस अपॉर्चुनिटी को पिक करना जो हमारे लिए है, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. तो मैं जानना चाहूंगा सबसे पहले कि मैं शुरू करूं. आई वांट टू बी इंटरेक्टिव. मैं चाहता हूं ये पूरा वेबिनार बहुत इंटरेक्टिव रहे, लोग बातचीत करें.
और मैं जानना चाहता हूं कि आप लोगों का भी डे स्केड्यूल कैसा चल रहा है. व्हाट इज वन थिंग दैट यू आर डूइंग व्हिच इज एडिंग वैल्यू टू योर लाइफ. You can keep on adding through chat if you want, or you can just unmute your mic and share it. One thing which is adding value to your life. क्या कर रहे हैं आप ऐसा अभी? Good morning, sir. Good morning. Sir, during these days, I am spending my time more in reading. Very good. So reading is one thing that you are doing. Fantastic. Sure. Anybody else? You can keep sharing on the chat also. I have no problems. Sir, I'm spending my time on my workout, my Very nice. personal family time, and some learnings as well. Health as a priority. Very good. And personal life. Anybody else who would like to share, or else? I want answers to be quick. इतना टाइम नहीं लगाना है माइक वाइक ऑन ऑफ करने में ना. फटाफट quick answers so that we can be on the to the point. Not received any other answers, so fine. I'll just carry on. लाइफ में सबके लिए टफ टाइम आता है फॉर एवरीवन. ऐसा नहीं कि आपके लिए या मेरे लिए आ रहा है, सबके लिए आता है. और ऐसे वक्त में ना पैसा काम आता है, ना कॉन्टैक्ट्स काम आते हैं, और पिछले कुछ दिन हम सभी के लिए बहुत टफ थे. सो इस समय पर कैसे अपने स्टेट ऑफ माइंड को मेंटेन किया जाए, कैसे हम अपनी लाइफ को एक नए रिमार्केबल लेवल तक ग्रो कर पाएं, यही हमारा आज के इस वेबिनार का मकसद है. नाउ आई वुड जस्ट लाइक टू टेल यू दैट हम जिन लोगों को फॉलो करते हैं, जिन लोगों को हम लोग बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं और जिनकी सक्सेस से हम इंस्पायर होते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग जिनके बारे में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, उनमें से ही एक कहानी आज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा. आप सभी इलॉन मस्क के बारे में जानते हैं, जो कुछ समय तक नंबर 2 रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड रहे. और उनकी जिंदगी, जब मैं अपनी किताब के लिए रिसर्च कर रहा था, पढ़ रहा था, तो मैंने उसको बहुत डिटेल में पढ़ा और उनको समझा. और जब मैं ये देखता था और बहुत सारे ऐसे लिमिटिंग थॉट्स और बिलीफ्स जिनके साथ हम जीते हैं, that we should be able to do only one thing at a time, we should focus on one thing, we should we should not start anything which we don't know about. हमें ऐसा कोई बहुत 2 या 3 काम एक साथ शुरू नहीं करने चाहिए, हमें लाइफ में लिमिटेड रिस्क लेना चाहिए. ऐसे बहुत सारे बिलीफ्स जिनको हम कैरी करते हैं, इन सभी बिलीफ्स को इस व्यक्ति ने मेरे जीवन में तोड़ा, और वो व्यक्ति है एलॉन मस्क. एलॉन मस्क की जिंदगी तो बहुत शुरुआत से ही टफ थी. मतलब स्कूल में उनकी बुलिंग हुई, उनको बहुत बचपन में ही उनके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया, और उसके बाद जैसे जैसे उन्होंने अपने आप को ग्रो करना शुरू किया, वो अपने आप को बहुत आइसोलेटेड रखते थे. यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, कॉलेज किया, जब मास्टर्स कर रहे थे, आगे पढ़ाई करना चाहते थे, उसके बाद उन्होंने अपना कॉलेज ड्रॉप कर दिया, क्योंकि उनको वो चीज़ बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं लगी. उनको लगा ये उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है. बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है. उन्होंने अपना पहला वेंचर अपने भाई के साथ शुरू किया, और ये बिजनेस जो उन्होंने शुरू किया, ये बिजनेस था पेपाल. आप सब जानते हैं इस कंपनी के बारे में. या दुनिया की सबसे बड़ी पेमेंट गेटवे, शुरुआती सबसे पुरानी पेमेंट गेटवे पेपाल. उन्होंने शुरू किया, बिजनेस अच्छा चला, अच्छा ग्रो किया. कुछ ही समय में उन्होंने बहुत पैसा बना लिया, और उस पैसे को, उस कंपनी को, बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, क्योंकि उस समय पे भी मोनोपोली चलती थी, उनको इस कंपनी को सेल करना पड़ा और उसको छोड़ दिया. अब उनके पास कुछ पैसा था, थोड़ा सा पैसा था, बहुत ज्यादा भी नहीं था, एक्स्ट्रॉर्डिनरी था. और जैसा हम कहते हैं ना कि हम एक समय पर एक चीज शुरू करते हैं, मैं इस आदमी का इसलिए फैन हूं क्योंकि इसने एक समय पर 2 ऐसे आइडियाज पे काम करना शुरू किया, जिन दोनों आइडियाज के बारे में, पहली बात, उसको तो ना नॉलेज थी. मतलब he was not a rocket scientist, he has never worked in NASA, और ना ही उनकी फिजिक्स के अंदर कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्वालिफिकेशन थी. तो उन्होंने 2 कंपनीज की शुरुआत की एक साथ, और ये 2 कंपनीज थी स्पेस एक्स और टेस्ला. जहां स्पेस एक्स काम कर रही थी दुनिया में रीयूजेबल रॉकेट्स बनाने के लिए, और रीयूजेबल रॉकेट के साथ साथ वो चाहते थे कि हम यहाँ लोगों को धरती से वी कैन टेक देम टू मार्स एंड अदर प्लैनेट, स्पेस टूरिज्म के लिए.
और दूसरी कंपनी जो टेस्ला थी वो काम कर रही थी ड्राइवरलेस कार्स एंड ऑन सोलर कार्स, मतलब ई कार्स, जो उस समय पर बहुत नया कॉन्सेप्ट था। उन्होंने अपने जो उनके पास फंड्स थे उससे काम करना शुरू किया, और जैसा हर अच्छे एंटरप्रेन्योर के साथ होता है उनके साथ भी हुआ, क्योंकि आइडिया कुछ वैल्यू नहीं कैरी करता। आपका आइडिया कितना एक्स्ट्रॉर्डिनरी है कुछ बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, आप उस आइडिया के साथ कितना दूर तक चल पाते हो ये ज्यादा मैटर करता है। उन्होंने अपने आइडिया पे काम करना शुरू किया, काफी काम हो गया। अब ये दोनों चीजें पैरेलली चल रही थी। एक तरफ उनके रॉकेट्स फैल्कॉन 1, फैल्कॉन 2, फैल्कॉन 3, ये 3 रॉकेट्स बैक टू बैक क्रैश हुए, मतलब उड़ने के कुछ समय बाद ही ब्लास्ट हो गए और सभी फेलियर रहे। 2008 तक स्थिति इसकी वजह से यह आ गई कि पूरी दुनिया की मीडिया उनके पीछे पड़ गई थी, उनके इन फेलियर्स के पीछे पड़ गई थी, और उनकी कंपनी ऑलमोस्ट बैंकरप्सी की स्टेज पे आ चुकी थी। उनके पास अब और कोई पैसा नहीं था। साइमल्टेनियसली टेस्ला भी अपने बहुत डिफिकल्ट टाइम्स में से निकल रही थी। टेस्ला में उनका जो ड्राइवरलेस कार का कॉन्सेप्ट और इलेक्ट्रिक कार का कॉन्सेप्ट अभी अधूरा था। उनके प्रोटोटाइप्स की जो कॉस्ट उन्होंने सोची थी उससे 3-4 गुना ज्यादा वो स्पेंड कर चुके थे, लेकिन अभी भी उनको वैसा प्रोटोटाइप नहीं मिल पाया था जैसा कि मार्केट में सेलेबल हो और कॉस्ट इफेक्टिव हो। और अभी उनके पास बैटरी के लिए भी कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं था। ये सब कुछ करने के बाद 2008 में पैरेलली दोनों कंपनीज बैंकरप्सी के स्टेज पे थी। उनके पास पैसा नहीं था उस प्रोजेक्ट को आके लेके जाना, और पूरी दुनिया की मीडिया उनका मजाक उड़ा रही थी। लेकिन उन्होंने देखिए, उनके पास ना तो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिफिकेशन थी रॉकेट्स के लिए ना कार्स के लिए, लेकिन वो कॉन्सेप्चुअलाइजेशन से लेकर उसके एग्जीक्यूशन तक हर पार्ट में खुद इंडिविजुअली इन्वॉल्व थे। और साथ में ही ये तो उनकी प्रोफेशनल लाइफ थी, उनकी पर्सनल लाइफ भी मैस में थी। उनकी वाइफ के साथ उनका डाइवोर्स हुआ, बच्चे थे, उसके बाद वापस रियूनियन हुआ और फिर डाइवोर्स हुआ। ये सब भी साथ में ही चल रहा था। तो एक तरफ लाइफ के प्रॉब्लम्स थे और साइमल्टेनियसली बिजनेस के प्रॉब्लम्स थे। 2008 में जब उन्होंने अपना ये टफ माइंड के साथ फाइट करना शुरू किया और उन्होंने ये डिसाइड कर लिया दैट जीरो इज एन अपॉर्चुनिटी, तब उनकी लाइफ में एक टर्न अराउंड आया। टर्न अराउंड कुछ इस तरीके से आया कि उनका जो रॉकेट है वो सक्सेसफुल हुआ 2008 में, और जैसे ही वो सक्सेसफुल हुआ नासा ने उनको बहुत बड़ा प्रोजेक्ट असाइन कर दिया, क्योंकि नासा को अपने स्पेस शटल्स पे और अपने स्पेस स्टेशंस पे बहुत सारा सामान ट्रांसपोर्ट करना होता है और उसके लिए उनको ऐसे रॉकेट्स की जरूरत थी। उस सामान को ट्रांसपोर्ट करने का प्रोजेक्ट उनको मिला। तो यहां इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिलने की वजह से उनकी जो कंपनी थी सरवाइव हो गई। और दूसरी तरफ उन्होंने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट किया, जर्मनी में एक कंपनी के साथ टाई अप किया, अपने बैटरी का जो इश्यू था उसको रिजॉल्व किया और उनको इसके लिए भी फंडिंग मिल गई, और उसके बाद उनका काम एक बार फिर शुरू हो गया। लेकिन उनकी बात यहां नहीं रुकी, यहां पर वो नहीं रुके। उन्होंने इसके बाद कितनी कंपनी शुरू की बैक टू बैक। उनकी प्रॉब्लम ये थी कि उनको एक अच्छा सोलर पैनल चाहिए था। तो उन्होंने अपने एक कजिन ब्रदर के साथ एक कंपनी में इन्वेस्ट किया था सोलार सिटी नाम से। कुछ समय बाद उन्होंने उस कंपनी को एक्वायर कर लिया क्योंकि उनको सोलार के ऊपर बहुत बड़ा रिसर्च चाहिए था। कंपनी कार्स पे काम कर रही थी, रॉकेट्स पे काम कर रही थी, तो उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी चाहिए थी। तो उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर एक कंपनी शुरू कर दी। और यहां पर बात खत्म नहीं हुई, वो अपने इनोवेशन को यहां नहीं छोड़ पाए। उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया जिसका नाम था हाइपरलूप। आपने इसके बारे में सुना होगा। एक ऐसी ट्यूब, एक ऐसी ट्रेन जो कि ट्यूब में चलती है और जिसकी स्पीड ऑलमोस्ट फ्लाइट की स्पीड के बराबर चलती है, इन अ ट्यूब, हाइपरलूप कॉन्सेप्ट पे उन्होंने काम करना शुरू किया। उनको न्यूयॉर्क में एक प्रोजेक्ट भी मिला जिसमें वो विद इन द ट्यूब कॉन्सेप्ट पे काम कर पाए। वो प्रोजेक्ट चल ही रहा था, लेकिन उसमें जरूरत थी बहुत सारे टनल्स खोदने की। तो उन्होंने एक और कंपनी शुरू कर दी, उस कंपनी का नाम था द बोरिंग कंपनी। और ऐसे करते करते उनके पास आज कुछ कम से कम 12-13 ऐसी कंपनीज हैं जो अलग अलग एरियाज में काम कर रही है। कोई ओपन एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रही है, और अब तो उनका दिमाग इस तरह से चलने लगा है कि अब वो ब्रेन इंटरफेस क्रिएट कर रहे हैं। वो प्लांट्स, वो किस तरीके से हम माइंड के साथ प्रोग्रामिंग कर सकते हैं उस पर काम कर रहे हैं, और बहुत सारे अलग अलग एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। मैं यहां पर मेरा एक बहुत बड़ा पैराडाइम टूटा।
एक समय पर एक काम मत करो। अगर आपके पास कैपेबिलिटी है और आप सोच सकते हैं, यू आर डिटरमाइंड टू डू व्हाट यू वांट, तो आपको करना चाहिए। टू बी इनोवेटिव, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं भी है, नॉलेज एंड टू एंड नहीं भी है, टेक योर फर्स्ट स्टेप। और ये स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग थी। और आज उनकी सिचुएशन ये है कि उनके ज्यादातर काफी सारे प्रोजेक्ट्स अभी तक फेलियर हैं, बट स्टिल ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस तरह के फेलियर्स के साथ सभी रिचेस्ट पर्सन बन जाएंगे, हमारी जिंदगी में भी बहुत सारी तकलीफें होती हैं, लेकिन यहाँ जो पॉइंट और ऑब्जेक्टिव है स्टोरी को कहने का, वो ये कि हमारे लिए नहीं, दुनिया के किसी भी व्यक्ति को जिसको हम एडमायर करते हैं, सभी की जिंदगी में ऐसे अनहैप्पी टाइम्स आते हैं, ऐसी सिचुएशंस आती हैं। और कैन यू प्लीज म्यूट योर माइक? तो एक से सुनूंगा। सो लेकिन अगर किसी की जिंदगी में ये टफ टाइम्स नहीं आते हैं तो वो सिर्फ डेड पीपल है। इफ यू आर लाइव देन यू विल हैव प्रॉब्लम्स। और मुझे नरेंद्र मोदी साहब की एक स्पीच याद आती है, जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने अपनी एक स्पीच में एक रिमार्क किया था और वो कहते थे कि अगर मेरी जिंदगी में कोई एक ऐसा दिन आता है जिस दिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कोई नई प्रॉब्लम नहीं आती है, तो मैं ईश्वर से ही पूछता हूं कि आप मुझे भूल गए हो क्या। क्योंकि अगर आपकी लाइफ में कोई नया टफ सिचुएशन नहीं आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपके पास कोई नया चैलेंज नहीं है। और हर प्रॉब्लम का एक लिमिटेड स्पैन होता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती जो हमेशा रहती है। मैं आज सुबह बैठकर मेडिटेशन कर रहा था अपनी बैल्कनी में और देख रहा था बहुत सारे क्लाउड्स थे, लेकिन उसके बीच में से धीरे से सूरज कभी झांकता था और कभी वापस उस क्लाउड्स में छुप जाता था। तो मेरे को ये बात बहुत अपील की, बहुत रेलेवेंट लगी कि सूरज जो पूरी हमारी ब्रह्मांड, हमारे पूरी सौरमंडल को चलाता है, उस सूरज को भी कभी कभी क्लाउड्स ढक लेते हैं, लेकिन वो क्लाउड्स उसको हमेशा के लिए नहीं ढक पाते, उसमें इतनी सक्षमता नहीं है, वो सूरज अपना रास्ता निकाल लेता है। सो हर समस्या की एक लिमिटेड पीरियड होती है, एक स्पैन होती है, और उसके बाद वो आपके सामने सर्वाइव नहीं कर सकती, क्योंकि आपका डिटर्मिनेशन उसको हराने में पूरी तरीके से सक्षम है। नाउ अगर आप बात करें तो हर प्रॉब्लम के अंदर कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव होता है, और मैं समझता हूं पैंडेमिक वाज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी, इट वाज अ बिग पॉसिबिलिटी। और मैं ऐसा सोचता हूं कि ये वो वक्त था जब पूरी दुनिया को एक नए बदलाव के अंदर जाना था। जो ई लर्निंग कंपनीज 10 साल में नहीं कर सकती थी, वो उन्होंने 6 महीने में किया। जो फार्मा कंपनीज शायद अपने 40 साल के प्रोसेस में नहीं कर सकती थी, उन्होंने 1 साल में किया। जो नेटवर्किंग और टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज, और हम जिस सॉफ्टवेयर पे बैठ के काम कर रहे हैं इस समय पे, जूम, वो शायद जिस चीज को समझाने में पूरी दुनिया को 10 साल लगा था, वो काम उसने 3 महीने में किया। 17 टाइम्स 20 टाइम्स ग्रोथ की। तो इसका मतलब यह है कि हर मुश्किल किसी के लिए अपॉर्चुनिटी होती है। हमने देखा था जब हमारे यहाँ पे डीमोनेटाइजेशन हुआ था, पेटीएम ने कई गुना एकदम से छलांग लगाई थी, बाकी लोग तकलीफ में थे। इसका मतलब यह है कि हर समय किसी ना किसी के लिए अपॉर्चुनिटी और किसी ना किसी के लिए तकलीफ का समय है। तो इसका मतलब यह है कि किसी के लिए अपॉर्चुनिटी भी है, क्यों ना हम अपने आप को उस अपॉर्चुनिटी साइड में देखें। क्योंकि मैं आपको ये बात एक एग्जांपल, एक लाइव एग्जांपल कोटा शहर के एक एग्जांपल के साथ बताता हूं। कोटा शहर में सबसे बड़ा फाइनेंशियल हब है कोचिंग, और कोचिंग के अंदर एक बहुत सारे एंसिलरी यूनिट्स हैं। कोई उनको यूनिफॉर्म प्रोवाइड कराता है, कोई उनको बैग प्रोवाइड कराता है, कोई और सब बिजनेस। और जैसे कोचिंग के ऊपर खतरा आया, इन लोगों के ऊपर भी खतरा आया। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन हमारे बीच में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो उनको बहुत बड़ी क्वांटिटी में यूनिफॉर्म सप्लाई किया करते थे। यूनिफॉर्म सप्लाई का काम पूरी तरीके से रुक गया, उनको ये चीज का अंदाजा था। और इसी समय पर एक बहुत बड़ी विपत्ति आई और उनको ये एहसास हुआ कि ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर था, उनके पास कारीगर थे, और गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया था कि आप फैक्ट्रीज चला सकते हैं। तो उन्होंने पीपीई किट, मास्क, ये सब बनाने शुरू किए। एंड विश्वास करिए कि उन्होंने एक, मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं बोलूंगा, बट हंड्रेड्स ऑफ करोड़ में उस दौरान बिजनेस किया, जो शायद वो उन्होंने कभी नहीं किया होगा। और उन्होंने एक पूरी इस सप्लाई को अक्रॉस इंडिया सेल किया, पीपी किट की बहुत बड़ी क्वांटिटी, क्योंकि उनके पास उतना ह्यूज
सेटअप था चीजों को बनाने का। बस फर्क सिर्फ इतना था कि उस सबसे बड़ी कमजोरी को उस अपॉर्चुनिटी में कैसे बदलना है वो उनके दिमाग में था। ही वॉज प्रोएक्टिव, ही वॉज रेडी, ही वॉज नॉट रेडी टू गिव अप। और इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है हम सब के लिए। लेकिन होता यह है कि ये ऐसा नहीं कि मेरे और आपके लिए, but there had been a research, and in that research it had been found that out of 100 people who dream to do something big at the age of 20 to 25 years, out of that 95 people fail. Only one is able to succeed and become rich or extraordinary achievements वो करके निकलता है। कुछ 4 लोग होते हैं जो पूरी तरीके से अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना देते हैं और अपनी लाइफ को पर्पसफुल बना पाते हैं, लेकिन बाकी 95% लोग सिर्फ इंतजार करते हैं। और ये चीज रिसर्च के बाद 65 इयर्स की एज में चेक किया गया दैट ऑल दीज पीपल आर स्ट्रगलिंग। 95% पीपल आर स्ट्रगलिंग, ओनली 5 आर एबल टू मेक देयर लाइफ मीनिंगफुल। उसके पीछे क्या कारण है, ऐसा क्यों हुआ? क्यों बाकी लोग स्ट्रगल कर रहे थे? उसका कारण जब जानने की कोशिश की गई तो देखा गया कि ज्यादातर लोगों के अंदर करेज नहीं होता और वो हमेशा किसी दूसरे को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। वो कभी अपने खुद के माइंडसेट से कोई नई चीज इवॉल्व करने की कोशिश नहीं करते हैं और उनको ऐसा विश्वास है, उनका बिलीफ सिस्टम ये कहता है कि मेरी जिंदगी के लिए कोई दूसरा जिम्मेदार है। मेरी जिंदगी में अगर कोई तकलीफ आई है तो उसके लिए हमारी सरकार जिम्मेदार है, अगर मेरी जिंदगी में कोई तकलीफ आई है तो उसके लिए मेरे माँ बाप जिम्मेदार हैं। वो अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाते और वो हमेशा किसी ना किसी को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश करते हैं और यही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी है। Because until unless you start believing that you are responsible for your own life, nobody else can change your life. तो अगर आप आज सुबह उठे और आपने अपने बिस्तर से पैर नीचे रखा तो क्या आपके दिमाग में क्लियर आइडिया था कि आज आप क्या करने वाले हैं? क्या आपको बिल्कुल क्लियर आइडिया था कि आज आपको काम क्यों करना है और आप सुबह उठते क्यों हो? क्या पर्पस है आपके इस दिन का? अगर आज मेरे पास ये क्लियर कट आइडिया नहीं है सुबह उठने से पहले कि आज मैं क्यों उठाऊं और मेरे लाइफ का पर्पस क्या है, तो इसका मतलब मैं उस शिप की तरह हूं जिसके कैप्टन को ये नहीं पता कि उसको कहां जाना है। और जब किसी कैप्टन ऑफ द शिप को ये नहीं पता होता कि उसको कहां जाना है तो डेफिनेटली वो वहां पहुंचता है जहां वो नहीं जाना चाहता है। अगर आप अपनी नाव को हवा के भरोसे छोड़ दोगे तो कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे, लेकिन वहां नहीं पहुंचोगे जहां आप पहुंचना चाहते हो। और इसके ऊपर भी एक रिसर्च किया गया और पता किया गया आउट ऑफ 20 पीपल 19 पीपल डिडंट न्यू व्हाई दे आर अलाइव। 19% मतलब 95% लोगों को अगेन ये नहीं पता कि वो जिंदा क्यों है, वो करना क्या चाहते हैं और उनके पास कोई क्लियर कट मिशन नहीं है, कोई लाइफ का पर्पस नहीं है और इसीलिए उनकी लाइफ की ये बहुत बड़ी समस्या है। वो इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि सब कर रहे हैं, वो इसलिए जिंदगी जी रहे हैं क्योंकि सब जी रहे हैं, वो सब कुछ वैसे ही करते हैं जैसे सब लोग करते हैं, लेकिन उनका अपने पास उनका अपना खुद का कोई अप्रोच नहीं है। और इसमें से सक्सेसफुल कौन होता है? सक्सेसफुल वो होता है वन हु इज प्रोग्रेसिंग फॉर अ वर्दी आइडिया। कोई एक ऐसा व्यक्ति जो एक्शन ले रहा है और उसके पास एक वर्दी आइडिया है, एक ऐसा आइडिया जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता है, एक ऐसा आइडिया जिसके लिए वो पैशनेट है, एक ऐसा आइडिया जिसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है और ऐसे आइडिया के साथ वो आगे बढ़ रहा है। तो एक बात क्लियर है, सक्सेस कौन होगा इस सिचुएशन में? वो वही होगा जिसके पास एक वर्दी आइडिया है। और जिसके पास एक वर्दी आइडिया नहीं है वो हमेशा पूरी जिंदगी कुछ ना कुछ जरूर करेगा, लेकिन कुछ बहुत रेलेवेंट करेगा इसकी गुंजाइश हम नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ? क्या आप खुद को सक्सेसफुल मान सकते हो? जी हां, अगर आप हाउसवाइफ हैं और आप हाउसवाइफ ही बनना चाहते थे और आप अपने हाउसवाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी को उस लेवल तक पहुंचा चुके हो,
अगर आपका किचन है वेल मैनेज्ड है, आपकी ग्रोसरी की शॉपिंग है वेल मैनेज्ड है, आप अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा मीनिंगफुल बना चुके हो, तो आप सक्सेसफुल हो। अगर आप टीचर हो और आपकी जिंदगी का सपना टीचर बनना ही था और आप उस काम को बहुत ईमानदारी और बहुत पैशन के साथ कर रहे हो, तो आप सक्सेसफुल हो। अगर आप एक बिजनेसमैन हो और जहां तक आप आज पहुंचे हो वहां तक पहुंचना ही आपका सपना था, तो आप सक्सेसफुल हो। लेकिन अगर आपको आज भी नहीं मालूम कि आप एक्चुअल में क्या करना चाहते थे और आप क्या कर रहे हो, तो कुछ वापस सोचने की जरूरत है। और इसीलिए जो सक्सेसफुल होता है वो बार बार सक्सेसफुल होता चला जाता है, क्योंकि सक्सेस एक्चुअली इज नॉट अ डेस्टिनेशन, वो एक माइंडसेट है। जिस व्यक्ति के पास सक्सेस माइंडसेट होता है वो हर चीज में से सक्सेस क्रिएट कर लेता है, और जिसके पास एक फेलियर माइंडसेट होता है वो हर जगह फेलियर क्रिएट कर लेता है। क्योंकि मैं ऐसा ही मानता हूं कि फेलियर एक्चुअल में कुछ नहीं होता, इट इज अगेन एन अपॉर्चुनिटी, इट इज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी। जब आप सभी ने ये कहानी सुनी होगी कि एक बल्ब बनाने के आविष्कार में 10,000 बार फेल होने के बाद भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं 1000 बार फेल हुआ हूं, वो यही कहते रहे कि मैंने 1000 बार सीखा कि बल्ब किस तरीके से नहीं बन सकता है। तो इसलिए फेलियर नहीं, अपॉर्चुनिटी है। हमें ये देखना है कि इन टफ सिचुएशन में हम कैसे इनोवेटिव रह सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको एक बहुत क्लियर अप्रोच अप्लाई करना पड़ेगा, और वो अप्रोच ये है, यू विल बिकम व्हाट यू बिलीव। आप जो बिलीव करते हैं वही आप हैं, वही आप बनेंगे। पर सच्चाई ये है कि हमें तो ये नहीं मालूम कि हम बिलीव क्या करते हैं। क्या आप सभी के पास आपकी एक बिलीफ लिस्ट है? क्या आपको मालूम है कि आपके बिलीफ सिस्टम में आपने कौन से बिलीफ्स प्लांट किए हुए हैं? और अगर आपको ये नहीं मालूम तो आपको इसकी एक लिस्ट बनानी चाहिए। जब आप इसकी लिस्ट बनाएंगे तो आपको कुछ ऐसे बिलीफ्स पता चलेंगे जो शायद बहुत एम्पावरिंग ना हो, बहुत लिमिटिंग हो, जो आपको रोकते हो, आपको आगे बढ़ने से रोकते हो। उन बिलीफ्स को हमें आइडेंटिफाई करना जरूरी है, बिकॉज हम वही बनेंगे जो हम बिलीव करेंगे। सो वी हैव टू वर्क ऑन आवर बिलीफ सिस्टम, and then if our belief system is with us, we are going to succeed. यहां पर हमें एक पूरा का पूरा पैराडाइम शिफ्ट करने की जरूरत है, पूरा पैराडाइम शिफ्ट। और हम पैराडाइम जब बोलते हैं तो हमें एक पूरा अप्रोच चेंज करना पड़ेगा। और इसीलिए ये जो वक्त है, ये जो पैंडेमिक का वक्त है, मैं आपको मेरा थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूं, मैं अपने समय को कैसे गुजारता हूं। पिछले पैंडेमिक में जब 21 तारीख को लॉकडाउन लगा था, मैं एक वर्कशॉप कर रहा था उस समय पे कोटा में ही, कंट्रीन में, और हमारा एक दिन का वर्कशॉप बच गया था और 22 तारीख को लॉकडाउन लग गया था और उसके बाद फिर लॉकडाउन रहा। मुझे उस समय पे समझ में आया कि इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। और ये जो बुक आप जिसका स्क्रीनशॉट देख पा रहे हो, ये बुक उसी समय लिखी गई। उन 2 महीनों में मैंने अपनी बुक ऑथर की और मैंने ज्यादा से ज्यादा काम कंप्लीट उस समय पे करने की कोशिश की, उसके लिए जो भी पढ़ना था, लिखना था, और मैंने एज अर्ली एज पॉसिबल पब्लिशिंग के लिए भेज दिया प्रूफ रीडिंग करने के बाद, और एग्जैक्ट 9 महीने में मेरी किताब पब्लिश होके आ गई। तो ये मेरी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आज के दिन भी यहाँ पेंडेमिक है, पूरी तरफ काम बंद है। मेरा शेड्यूल सुबह 5:30 बजे शुरू हो जाता है। 5:30 बजे उठने के साथ मैं थोड़ा मेडिटेशन करके तुरंत फ्रेशन अप होके, नहा धो के, मेडिटेशन करके, एंड देन आई स्टार्ट द वर्कआउट्स, एंड देन आई एम राइटिंग वन मोर बुक ऑन कॉन्शियसनेस। और मेरी दूसरी बुक जो हिंदी में है उसका भी फाइनल प्रूफ रीडिंग चल रही है, तो वो बुक चल रही है। एक बुक लिख रहा हूँ, दिन में मैं वीडियोस बनाता हूँ, एंड आई एम प्लान्ड 180 days 180 वीडियोस ऑन यूट्यूब। तो मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, तो हर रोज एक वीडियो बनाना, एडिटिंग करना, टीम के ऊपर काम दे रखा है। इसके साथ साथ मैं अपने गोल्स के लिए काम कर रहा हूं। और यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम अपने गोल्स को किस तरीके से समझते हैं, क्योंकि अगर हमें एग्जैक्टली नहीं मालूम कि गोल कैसे ड्राफ्ट किया जाता है, ये आपने बहुत अच्छे से सीखा होगा, बहुत सारे ट्रेनिंग्स होते हैं, लेकिन हम उस गोल के साथ फिर करते क्या है, हमें यह भी समझना बहुत जरूरी है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये वक्त आपको जिंदगी में वापस नहीं मिलने वाला है। और एक चीज और, ये जो वक्त है ना, ये कभी किसी के लिए रुकता नहीं है।
अगर आप अपने आप को मल्टीफोल्ड ग्रो करना चाहते हो तो टाइम आपको 24 आवर्स मिलने वाला है। अब वो समय चला गया जब आप प्रायोरिटी सेट करोगे सिर्फ, अब वो वक्त चला गया जब आप बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ द टाइम करोगे। अब वक्त आ चुका है कि आपको अपने टाइम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जी हाँ, टाइम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या हुआ इसका मतलब? टाइम को मल्टीप्लाई करने का मतलब, टाइम को मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि अब आप सिर्फ 24 घंटे को यूज नहीं करोगे, आपको इन 24 घंटों को 48 या 72 घंटे बनाना होगा। हर रोज उतने ही टाइम में एक आदमी जितना काम 24 आवर्स में कर सकता है, आप 72 आवर्स का काम 24 आवर्स में कैसे कर सकते हो, यह आपको देखना होगा, जिसमें आपको अपनी लाइफ के बैलेंस को भी मेंटेन करना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये काम मतलब सिर्फ प्रोफेशनल वर्क है, इसमें आपको अपनी फैमिली को भी टाइम देना है, इसमें आपको अपने स्पिरिचुअल वर्क को भी टाइम देना है। किसी ने कहा कि मैं किताब पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग, तो आपको अपने लाइफ के कुछ ऐसे पर्पसेस जो आपको पसंद है, आपको अपने हॉबीज को भी टाइम देना होगा, आपको अपने आपके खुद के जो लाइफ के लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उनके लिए भी आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, आपके प्रोफेशन को भी टाइम देना पड़ेगा। ये सारी चीजों को बैलेंस करना है। और इसीलिए हम एक चीज महसूस कर रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा, या तो किसी के पास तो बहुत सारा टाइम है और वो टाइम वेस्ट कर रहा है या टाइम पास कर रहा है, और किसी के पास टाइम की कमी है। अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको थोड़ा सा टाइम कम महसूस हो रहा है, जिनको लग रहा है कि उनकी लाइफ में अब टाइम थोड़ा कम पड़ने लगा है, क्योंकि मेरा शेड्यूल सुबह 5:30 बजे शुरू होता है और रात को 11:30 बजे खत्म होता है। 11:30 बजे सोता हूँ, सुबह 5:30 बजे उठ जाता हूँ, और ये पूरे साइकिल में 6 घंटे सोने के बाद कंटिन्यूअसली इतने देर काम करने के वजह मेरे ऑनलाइन, अब आपको मैं बताता हूँ कि जहां पूरी दुनिया में ट्रेनिंग और लर्निंग बिजनेस में ग्रोथ आई, मैं आपको एक बहुत मतलब रियल केस स्टडी बता रहा हूं कि मेरे लिए ये पैंडेमिक कितना सक्सेसफुल कैसे रहा। मुझे एक चीज समझ में आ गई थी कि ये जो बिजनेस है, ये जो समय है, ये पूरी तरीके से चेंजों को बदलने के लिए आया है, चेंज मैनेजमेंट। और इस समय पर जो अपने आप को नहीं बदलेगा, जो अपने आप को रोकेगा, वो डायनासोर बन जाएगा। जी हाँ, डायनासोर बन जाएगा, वो नोकिया बन जाएगा, वो ऐसी कंपनी बन जाएगा जिसकी रेलेवेंस खत्म हो जाएगी, वो थॉमस कुक बन जाएगा। जिसने इस समय पर यह सोचा कि चीजें वापस ऐसी ही होकर आएंगी, वो गलत है। उसको अपनी इस अपॉर्चुनिटी के अंदर पूरी तरीके से बदलाव लाना पड़ेगा, उसको बदलना पड़ेगा। तो आप, मैं बताऊं आपको कि हम लोगों ने जब पहला पेंडेमिक शुरू हुआ, तो जहां आज आपको 26-30 लोगों को इकट्ठा करने में, मैं जानता हूं आशिमा जी ने और उनकी टीम ने कितनी मेहनत की होगी। ठीक है, क्योंकि वैसे तो कहने के लिए पेंडेमिक है, सब अपने घर में बैठे हैं, लेकिन सब बिजी हैं किसी ना किसी काम में, लेकिन काफी लोग अभी सो के नहीं उठे होंगे। ठीक है, ऐसा टाइम, पेंडेमिक का टाइम, उस समय पर जहां हमें पूरे महीने में, व्हेन वी वर प्रमोटिंग आवर प्रोग्राम्स, हमारे को अपने न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का, मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन का कोर्स करता हूं, जहां हम लोग पास्ट लाइफ के ऊपर काम करते हैं। मैं मास्टर हिप्नोटिस्ट हूं और मैं हिप्नोटिज्म के ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम्स करता हूं। तो जब मैं बाहर जाता हूं तो मुझे पहले ये काम कैसे करना पड़ता था, अगर मुझे एक प्रोग्राम प्रमोट करना है, तो अगर मैं बॉम्बे में प्रमोट कर रहा हूं तो मैं पहले बॉम्बे में एक होटल बुक करता था, बॉम्बे जाता था, वहां रुकता था, वहां पर जाके वहां का लोकल होटल बुक मतलब कोई अच्छा प्रॉपर्टी लेते थे, उसमें बच्चों के, लोगों के आने के लिए, उनके गेस्ट के लिए अरेंजमेंट करता था, और इस पूरे प्रोसेस में मेरा एक फ्री वेबिनार में 1 लाख रुपए खर्च होता था। और आपको मैं बताऊं कि पिछले साल जब पैंडेमिक की शुरुआत हुई, मेरे को जो फेसबुक की एक लीड 80 रुपए से 100 रुपए की पड़ती थी, वो मुझे 4 रुपए की मिली। और जिस समय पर हमें 30 लोग इकट्ठे करने मुश्किल होते थे, उस समय पे हम हर रोज एक 100 से 200 लोगों का वेबिनार करते थे, क्योंकि लोग फ्री थे। हमारे लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, लीड सस्ती मिल रही थी, तो हमने उसको अपॉर्चुनिटी की तरह यूज किया और हमने भरपूर वेबिनार्स किए, भरपूर प्रमोशन किया, और जो काम में हमें 1 लाख रुपए खर्च होता था, वो हमारे को फ्री में होने लग गया। मैंने आपको बोला ना, अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी कैसे यूज करनी है, सिर्फ इसके बारे में सोचना है। और अब मुझे नहीं लगता कि मैं जिंदगी में कभी जाके बॉम्बे में फ्री वेबिनार करूंगा, क्योंकि अब लोग इस चीज को एक्सेप्ट कर चुके हैं और अब उनको ये चीज अच्छी लगने लगी है। सो इसलिए अब हमें एक काम करना होगा। अक्सर जब समस्या आ जाती है, मुझे याद है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा फिर से, 2009-10 की बात है, मेरा एक मीडिया के अंदर अपना एक
हस्तक्षेप है। आई एम इनटू द फील्ड ऑफ एनिमेशन, मल्टीमीडिया एंड ग्राफिक्स, उसके बारे में मेरी काफी अच्छी नॉलेज है। फोटोग्राफी के बारे में मेरे पास बहुत बड़ी टीम थी उस समय पर, ये करियर बूम पे चल रहा था। तो मैंने यहाँ के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को अप्रोच किया और मैंने उनसे कहा कि आप बहुत बड़े हो चुके हो, आपका इंडिया में बहुत बड़ी प्रेजेंस हो चुकी है, प्लीज ये बहुत सही वक्त है, आपकी ब्रांड बहुत बड़ी है, आपका नाम बहुत बड़ा है, आपके पास बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, इंडिया भर में आपके ब्रांचेस हैं, क्यों ना हम एक काम करें, लेट्स बिल्ड अवर डिजिटल एसेट, क्यों ना हम अपने आप को ई लर्निंग में लेके आ जाएं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं अभी हमारे पास टाइम नहीं, हमारा ये कोचिंग बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और अभी हम मतलब आई एम सॉरी टू से, हमने उनके साथ काम किया, फ्री कंटेंट डेवलप करके दिया, उनको बताया कैसे ये हो सकता है, 2010 की बात है। लेकिन बात यहां पर आई कि उन्होंने बोला नहीं नहीं अभी हमारे पास टाइम नहीं है, वी आर बिजी विद सम अदर वर्क। एंड देन द सेम ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच्ड अस बैक in 2018 and 19 that this is the time we want to develop e-assets। वापस हम ई लर्निंग में जाना चाहते हैं, हम क्योंकि अब ई लर्निंग की जरूरत आ गई। दोस्तों मेरी बात याद रखिएगा, कभी भी कुआं उस समय मत खोदना जब प्यास लग चुकी हो, कुआं आपको तब खोदना है जब आपको प्यास नहीं लगी हो। जो व्यक्ति उस समय कुआं खोदता है जिस समय उसको प्यास लगती है, वो प्यासा ही मरता है, याद रखिएगा। इसलिए यू हैव टू थिंक बियॉन्ड, यू हैव टू थिंक जब पैंडेमिक खुलेगा, जब चीजें बदलेंगी तब क्या होगा और उस समय पर मैं किस अपॉर्चुनिटी को लेकर जा सकता हूं, कौन सी चीजें नए तरीके से आएंगी, फ्यूचर किस तरीके का होगा। क्योंकि अब इस एक साल ने जो काम 10 साल में होना था उसको 1 साल में कर दिया है, याद रखना, जो काम 10 साल में हो सकता था उसको 1 साल में कर दिया है। इसलिए हमें ये समझना है कि हमारे फील्ड में, हमारे करियर में, हमारे जो भी गोल्स हैं लाइफ के, उनके अंदर किस तरीके से बदलाव आने वाला है। प्लीज डोंट डिग द वेल व्हेन यू आर थर्स्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारा पूरा दिन कैसे गुजरता है। बहुत सारी व्हाट्सएप पे पोस्ट आती है, उसके ऊपर कमेंट करने में, फेसबुक आता है, फेसबुक पे बहुत सारे कमेंट्स करने होते हैं, बहुत सारी राजनीति की बातें चल रही हैं, बंगाल में इलेक्शन हो रहा है, भारत का प्रधानमंत्री क्या क्या कर नहीं पा रहा है, कहां कहां पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, लोगों की जान क्यों जा रही है। हमारा इंटरेस्ट इन बातों में ज्यादा है और हम अपना पूरा समय उन चीजों को कंट्रोल करने के बारे में या उन चीजों के बारे में बात करने में गुजार देते हैं जिस पर हमारा एक्चुअल में कोई कंट्रोल नहीं है। आप नहीं कंट्रोल कर सकते कि देश की अर्थनीति, राजनीति किस तरीके से चलेगी। अगर आपके हाथ में है, आप कंट्रोल कर सकते हो तो प्लीज कंट्रोल कीजिए। मैं समझता हूं कि हमारे जेसीआई के लीडर्स को देश बदलना होगा, लेकिन हमारे जेसीआई के लीडर्स भी सिर्फ जेसीआई के अंदर लीडरशिप करते हैं और उसके बाद बोलते हैं आई एम माई लीडरशिप, तो यहीं तक कन्फाइन थी, इसके आगे मुझे नहीं जाना है। तो अगर आपको बदलना है, अगर आपको कोई चीज बदलने की जैसी लगती है तो आपको चेंज खुद क्रिएट करना पड़ेगा। गांधी जी ने एक बार कहा था, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, डोंट कर्स पीपल, डोंट टेल किसको क्या करना चाहिए, देश आपके लिए क्या कर सकता है। आपको यह सोचना है कि आप इस समय पर किस तरीके से देश के लिए, अपने आप के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहां आती है कि जो लोग इस समय पर देश को राय देने में लगे हुए हैं, लोगों को राय देने में लगे होंगे कि उसको ये करना चाहिए, उसको ये करना चाहिए, वो अपना घर ठीक से नहीं संभाल पा रहा है। जो अपना घर ठीक से नहीं संभाल पा रहा है उसको क्या अधिकार है कि वो दूसरे लोगों के ऊपर कमेंट करे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम हमेशा अपना पूरा टाइम उन चीजों को कंट्रोल करने में लगाते हैं जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हम उन चीजों को बदलना चाहते हैं जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन एक चीज है जिस पर आपका 100% कंट्रोल है और वो है आप। अगर एक चीज जिसको आप इस समय पर बदल सकते हैं तो वो है आप। क्या आप अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप अपने आप को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जो आपके अंदर बदली जानी चाहिए, वो कौन सी चीजें हैं? और यहां पर अगर आप अपनी जिंदगी को बिना पर्पस के जी रहे हैं तो मैं आपको कहूंगा कि आप अपने जीवन को व्यर्थ ही गुजार रहे हैं। इफ यू डू नॉट हैव अ पर्पस इन लाइफ, दैट मीन्स, सी, अगर किसी इंसान की जिंदगी में गोल नहीं है, किसी इंसान की जिंदगी में एक बहुत क्लियर कट पर्पस नहीं। अब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पर्पस एंड गोल। लेट मी मेक इट क्लियर। Goal is something like you want to make something in career, you want to do something in spirituality, into your finances, into your whatever. तो वो तो गोल्स हैं। लेकिन पर्पस क्या है लाइफ का? अल्टीमेट पर्पस क्या है? क्योंकि गोल्स तो थोड़े थोड़े समय में पूरे हो जाएंगे। आपने बोला मुझे एक बिजनेस शुरू करना है, आपने बिजनेस शुरू किया, आपका गोल पूरा हो गया। आपने बोला मुझे इतने रुपए कमाने हैं, आपने उतने रुपए कमाए, आपका गोल पूरा हो गया। आपने बोला मुझे अपने बिजनेस को 2 गुना बढ़ाना है, आपका गोल पूरा हो गया। तो ये तो गोल पूरे हो जाएंगे, लेकिन
गोल पूरे होने के बाद भी जिंदगी पूरी नहीं होगी। जिंदगी एक मकसद के लिए जी जाती है, एक पर्पस के लिए जी जाती है, और उस पर्पस को जानना जरूरी है। तो मैं जानना चाहता हूं आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। मैं ये आपसे नहीं पूछ रहा हूं कि आपका गोल क्या है, मैं आपसे पूछ रहा हूं आपके लाइफ का पर्पस क्या है। आप क्यों जिंदा हैं, आप क्या करके जाना चाहते हैं। अगर आपको जीवन मिला है तो आप उसमें से क्या देके जाना चाहते हैं। हम उन लोगों के बारे में हमेशा बात करते हैं जिन्होंने अपने जीवन में कुछ पर्पसफुल किया। सचिन तेंदुलकर, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, किसी की भी बात करें, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, बिजनेस लीडर हो, रतन टाटा हो, हम उनकी बात करते हैं क्योंकि उन्होंने जीवन के अंदर कुछ बहुत बहुत यूजफुल किया और उन्होंने अपनी जीवन में एक चीज को ढूंढ लिया। मैं यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलना चाह रहा हूं, इसलिए रुका हूं। हमें जिंदगी में बहुत सारी खूबियां नहीं ढूंढनी है अपने अंदर। और आपको मैं यहां एक चीज बता देना चाहता हूं, आपको दुनिया में ऐसे 7 लोग मिल सकते हैं, ऐसा मैंने किसी किताब में पढ़ा है, जो आपके जैसे दिखते हैं, आपके जैसे बोलते हैं। जब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई तो उसके जैसा लुक अलाइक मिल गया। बहुत सारे लोगों के लुक अलाइक्स हैं जो उनके जैसे दिखते हैं, उनके जैसे बोल सकते हैं। आपको दुनिया में एक ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जो आपके जैसे सोचता है। और इसलिए मैं ये कहता हूं, देयर इज ओनली वन यूनिक पीस दैट हैज बीन क्रिएटेड। आपके जैसा कोई नहीं है। करना क्या है, इस यूनिकनेस का क्या करें। हम पूरी जिंदगी क्या करते हैं, हम पूरी जिंदगी किसी दूसरे के जैसा बनना चाहते हैं, दूसरे के जैसा दिखना चाहते हैं, दूसरे के जैसा बोलना चाहते हैं, दूसरों के जैसा प्रेजेंट करना चाहते हैं अपने आप को। आप खुद के जैसा क्यों नहीं दिखते हैं? क्योंकि अगर आपने अपनी एक यूनिक क्वालिटी पहचान ली, सिर्फ एक, मैं 2 की बात नहीं कर रहा हूं, और जिन्होंने अपनी एक यूनिक क्वालिटी पहचान ली उन सबका नाम इतिहास में दर्ज हो गया। आप मिल्खा सिंह की बात करें, आप किसी भी ओलंपिक प्लेयर की बात करें, आप किसी फिल्म स्टार की बात करें, मैंने फिर से बोला सचिन तेंदुलकर की बात करें, अमिताभ बच्चन की बात करें, वॉल्ट डिज्नी की बात करें, आप किसी की भी बात करें, उन्होंने सिर्फ अपने अंदर एक चीज पहचानी, मेरी एक ऐसी क्वालिटी क्या है जो किसी के अंदर नहीं है। और ये बात क्यों रेलेवेंट है मैं बताऊं आपको। क्योंकि जब अगर कोई एक मशीन है, ये मशीन क्या है, एक टीम, हमारे ऑर्गेनाइजेशन जेसीआई एक टीम है, इसमें एक प्रेसिडेंट है, एक सेक्रेटरी है, सबके इंडिविजुअल रोल है और सबके बिना कोई काम नहीं चल सकता। हमारा परिवार भी एक टीम है। अगर वाइफ ना हो तो जिंदगी खराब, हस्बैंड नहीं हो तो जिंदगी खराब, बच्चे ना हो तो जिंदगी खराब। ये टीम है, सबको अपना अपना रोल प्ले करना है। ऐसे ही ये पूरी दुनिया भी एक टीम है, और इस टीम में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट पुर्जा है। अगर आपकी गाड़ी के अंदर कोई एक गियर, छोटा सा गियर टूट जाएगा ना, तो पूरी गाड़ी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो पूरी गाड़ी काम करना बंद कर देगी। आप भले एक छोटे से गियर हो, आप भले से एक छोटे से बोल्ट या नट क्यों ना हो, लेकिन आपकी इंपॉर्टेंस उस मशीन में उतनी है, क्योंकि आपके बिना वो मशीन नहीं चल पाएगी। आपको बोल्ट, आप जो हो, आपको वही बने रहना है, आपको उसी जगह पर अपना बेहतरीन काम करके देना है। अगर आप अपने गियर का रोल, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, सही तरीके से कर दोगे, तो आपके काम का, आपकी लाइफ का पर्पस पूरा हो गया। लेकिन हमारी लड़ाई तो ये है, हम अपना काम तो करना ही नहीं चाहते। हम तो दूसरे को सिखाना चाहते हैं, हम तो दूसरे को बताना चाहते हैं, हम तो दूसरे को बदलना चाहते हैं, हम तो दूसरे जैसा बनना चाहते हैं। अपने जैसा तो हम रहना ही नहीं चाहते। अपनी जगह रहकर जो काम हमें दिए गए वो तो हम करना ही नहीं चाहते। यही तो तकलीफ का कारण है। और इसीलिए अपने लाइफ का पर्पस जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, मैं आपको एक बहुत अच्छा सा टिप दे रहा हूं। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे वेबिनार्स में आपको ये बात बताई होगी, बहुत सारे सेमिनार्स में आपने सुना होगा, डू व्हाट यू लव टू डू। वो करो जो आपको करना पसंद है। लेकिन सिर्फ वो करना काफी नहीं है जो आपको पसंद है, क्योंकि अगर वो करने से आपको इनफ रेन्यूमरेशन नहीं मिलता है, आपको इनफ रिकॉग्निशन नहीं मिलता है, तो आपके जीवन की जो बाकी नीड्स हैं वो पूरी नहीं होती है। तो मैं आज आपको एक ऐसा फॉर्मूला देके जाने वाला हूं। वो फॉर्मूला आप अगर अपनी लाइफ में, अगर आपके पास पेन और पेपर है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। उस फॉर्मूले का अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप अपनी लाइफ का पर्पस रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। और मैं एक डायग्राम आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आप अपने हिसाब से इसको नोट कर लीजिएगा। एक छोटा सा गांव है जापान में, उसका नाम है ओकिनावा। ओकिनावा के अंदर गांव है, उसका नाम है ओकीमी, जहां पे 3000 लोग रहते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी इस पर्टिकुलर जगह की है। यहाँ पर काफी सारे लोग हैं जिनकी उम्र 100 से ज्यादा है। जब यहाँ के लोगों की सेहत, यहाँ पे लोग बीमार नहीं पड़ते हैं,
ज्यादा लोगों को कोई क्रॉनिक डिजीजेस नहीं होती है। जब लोगों ने जानने की कोशिश करी कि यहाँ के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी ज्यादा क्यों है, तो पता चला दो चीजें हैं, एक ये लाइफ में स्ट्रेस नहीं लेते हैं, दूसरा इनकी लाइफ का एक क्लियर कट पर्पस है। और इस पर्पस को आइडेंटिफाई करने के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया हुआ है। वहां हर आदमी के लाइफ में एक पर्पस है, एक कारण है जिसकी वजह से वो जी रहा है, और वो पर्पस उसको वहां पे बोलते हैं इकिगाई। इस वर्ड को बोलते हैं इकिगाई। आप अपनी लाइफ का पर्पस इस तरीके से ढूंढ सकते हैं। अगर आप वो कर रहे हैं जो आप करना पसंद करते हैं, यू लव टू डू, तो यह आपकी लाइफ में फुलफिलमेंट नहीं प्रोवाइड कराएगा, आपको उस काम को अच्छे से करना भी सीखना पड़ेगा। सो व्हाट यू आर गुड एट, अगर आप इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन बनेंगे तो ये बनाएगा आपकी लाइफ का पैशन, वो काम जो आप पैशन के साथ कर पाएंगे। व्हाट यू लव टू डू एंड व्हाट यू आर गुड एट, आपको उस काम को अच्छे से आना भी चाहिए और उस काम को करना आपको पसंद होना भी चाहिए, वो आपकी लाइफ का पैशन है। ऐसे काम करने के लिए आपको कोई मोटिवेट नहीं करे तो भी आप कर सकते हो, जैसे कि मोबाइल देखना आपको पसंद भी है और आप उसको करने में अच्छा भी करते हो, तो क्या आपको उसके लिए मम्मी को डांटना पड़ता है, पापा को डांटना पड़ता है, हस्बैंड को मोटिवेट करना पड़ता है, वाइफ को मोटिवेट करना पड़ता है, नहीं आज मोबाइल देखना पड़ेगा, आज फेसबुक चेक करना पड़ेगा? क्यों? आपको पसंद भी है, आप अच्छा करते भी हो, ये आपकी लाइफ का पैशन बन गया है, पर पैशन गलत सिलेक्शन हो गया है। दूसरा, व्हाट यू लव टू डू एंड व्हाट द वर्ल्ड नीड्स फ्रॉम यू। अरे इस दुनिया में आए हो तो क्या सिर्फ अपने लिए करके जाओगे? इस दुनिया के लिए कुछ नहीं करोगे, इस दुनिया को कुछ वापस गिव बैक नहीं करोगे। ऐसी कोई चीज जो आपको अच्छी भी लगती है लेकिन आप उसको दुनिया को वापस रिटर्न भी कर सकते हो। मेरे पास कोई ज्यादा क्वालिटी नहीं थी, बोलने की क्वालिटी थी, अब मुझे लगा कि इस क्वालिटी से अगर मैं कुछ लोगों को मोटिवेट कर सकता हूं मेरी जिंदगी का पर्पस हो जाएगा। तो माय मिशन ऑफ लाइफ दैट आई शुड बी एबल टू bring in positivity in millions of life, that is what my mission of life, क्योंकि ये काम को मुझे करना पसंद भी है और इसकी जरूरत दुनिया को है। ये काम मैं कर रहा हूं एज अ मास्टर हिप्नोटिस्ट, एज अ पास्ट लाइफ रिग्रेसर, एज अ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामर, ये सब काम मैं कर रहा हूं। इसके बाद what you are good at and what can you be paid for, अगर मान लीजिए आपको कोई काम पसंद है, आप अच्छा भी करते हो, लेकिन अगर आपको उसके बदले में पर्याप्त पैसा नहीं मिलता, पर्याप्त फेम नहीं मिलता, तो आप उस काम को करना पसंद नहीं करोगे। तो ये भी बहुत जरूरी है। तो अगर आपको ये पता चल जाए कि आप किस चीज में अच्छे हैं और किस चीज के लिए आपको पर्याप्त पैसा मिल सकता है, रिन्यूमरेशन मिल सकता है, रेस्पेक्ट मिल सकती है, तो वो बन जाएगा आपका प्रोफेशन और वो बन जाएगा आपका वोकेशन। और इन सब का जो कॉम्बिनेशन है वही है आपका पर्पस ऑफ लाइफ, वही है आपका इकिगाई। अगर आप इस चीज को ढूंढ पाए, आप अपनी जिंदगी में इस चीज को ढूंढ पाए और इन चीजों को कनेक्ट करके आप अपनी लाइफ का वो क्रक्स ढूंढ पाए कि आपकी लाइफ का पर्पस क्यों है, आप जिंदा क्यों हैं और किस काम के लिए आप इस दुनिया में आए थे, तो शायद ये जिंदगी और मीनिंगफुल हो जाएगी। जब आप सुबह कदम रखेंगे तो आपको मालूम होगा कि आप उठ क्यों रहे हो। जब आप जी रहे होगे तो आप बड़े आराम से एक सेंटेंस में बता पाओगे कि मेरी जिंदगी का मकसद ये है, मेरा जिंदगी का मिशन ये है। और मैं बहुत ज्यादा बातें नहीं करूंगा, मैं एक बिकॉज हमारे टाइम की लिमिटेशन है, लेकिन मैं जैसा मैंने शुरू में कहा था आपको, मैंने एश्योर किया था, प्रॉमिस किया था कि एट द एंड ऑफ द वेबिनार 15 मिनट का टाइम मैं क्वेश्चन और आंसर्स के लिए दूंगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है, कोई भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो, तो यहाँ पर इस मीडियम के माध्यम से आई वुड लाइक टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। सो आई एम गोइंग टू गिव यू वन एक्सरसाइज, और मैं आपको बता रहा था कि हमारा जो दिमाग है ना, लाइक यू हैव टू थिंक लाइक अ फार्मर। एक फार्मर के पास एक लैंड होती है और उस लैंड में उसके पास चॉइस होती है कि वो कौन सा क्रॉप उगाना चाहता है। अगर वो वहां पर कोई अनाज उगाएगा और उसका बीज डालेगा तो वही पौधा निकलेगा, और अगर उसके पास कोई जहरीला बीज है और वहां वो जहर उगाएगा तो जहरीले पौधे निकलेंगे। ये किसान की चॉइस है। जमीन कुछ नहीं कहेगी, जमीन तो यही कहेगी आप मुझे जो दोगे मैं उसको कई गुना बढ़ाकर आपको दे दूंगा। जमीन का एक ही रोल है, वो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगी, वो आपसे ये नहीं ऑब्जेक्शन नहीं करेगी, आप उसके अंदर जिस तरह का सीड प्लांट करोगे उसको कई गुना बढ़ाकर दे देने का काम हमारे को अर्थ, मदर अर्थ करती है, हमारी पृथ्वी करती है। और हमारे को हमारे यूनिवर्स ने जो कुछ भी प्रोवाइड किया है, अब आप सोचिए ऑक्सीजन की हम कालाबाजारी कर रहे हैं, ऑक्सीजन हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिली हुई है, कभी कोई टैक्स नहीं लगा, कभी किसी ने आके सवाल नहीं पूछा। पानी हमें अनलिमिटेड मिला हुआ है, कोई टैक्स नहीं है, कोई पूछ नहीं रहा। लेकिन जहां पर ह्यूमन इंटरवेंशन आ जाता है वहां से टैक्स शुरू हो जाते हैं, वहां से उसके लिए पैसा लेना शुरू हो जाता है। एक ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ हम 10,000 रुपए लेंगे, 15,000 रुपए लेंगे। तो मैं बात कह रहा था कि आपने कौन सा बीज उगाया है वही आपको बढ़ा के देगा।
हमारा ये जो माइंड है ना, ये भी एक ऐसा ही खेत है, एक ऐसा ही उपजाऊ खेत है. It is a very fertile land. It is ready to give you thousands of times what you want to. Okay, this is an instrument given to you. जैसे हमारी कार के अंदर हम जीपीएस इंस्ट्रूमेंट लगा देते हैं जो बताता रहता है कि इस समय आपकी कार कहाँ है, वैसे ही ये आपको एक इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है, ये ईश्वर ने गिफ्ट दिया है. हम पूरी दुनिया में इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, इतनी सारी नॉलेज लेके आते हैं, लेकिन हम कभी अपने बॉडी और माइंड के बारे में जानते हैं कि कैसे काम करता है, इसको कैसे कैसे यूटिलाइज करना है. ये माइंड जो है ना, ये आपके लिए मैजिक वर्ल्ड है, मैजिक वर्ल्ड. और अगर आप इस आई वुड लाइक सो आशिमा जी प्लीज रिकॉग्नाइज हमारे ZP सर इस समय पे हमारे बीच हैं. I recognize the presence of our dynamic ZP Jitesh Advani sir. Welcome sir. We are very fortunate to have you here for Welcome our Jitesh session ji, today. welcome. Thank you so much, Ashima ji, and congratulations for the National Training Day, and best wishes to National Trainer Vinay sir also for the Thank Training you Day. so much. Thank you so much. Thank you sir. Thank you so much. तो हमें हमारे दिमाग के अंदर वही उगाना है जो हम वापस चाहते हैं. अगर आप उसके अंदर सक्सेस बोएंगे तो सक्सेस काटेंगे, फेलियर बोएंगे तो फेलियर काटेंगे, जहर बोएंगे तो जहर काटेंगे. अगर पॉजिटिविटी बोएंगे तो पॉजिटिविटी काटेंगे, निगेटिविटी बोएंगे तो निगेटिविटी काटेंगे. ये आपकी चॉइस है कि आप इसमें क्या बोना चाहते हो. लेकिन हमें जो कुछ भी फ्री मिलता है उसकी कोई वैल्यू नहीं करते, हम अपने एनवायरनमेंट की कोई वैल्यू नहीं करते, हम उन चीजों की वैल्यू नहीं करते जिनको हमें फ्री में मिलती है. हमारा इंटेलिजेंस, हमारा माइंड, हमारी साइट, हमारे हमारे सेंसेस, हमारी हेल्दी बॉडी, इनकी हमारे जिंदगी में कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है. इसकी हमने कोई कीमत अदा नहीं की है. हमें किस चीज की वैल्यू है? जिसके लिए हम थोड़ा सा पैसा देते हैं उसको हम वैल्यू करते हैं. हम इस एनवायरनमेंट को वैल्यू नहीं करते, हम खुद को वैल्यू नहीं करते, अपने थॉट प्रोसेस को वैल्यू नहीं करते. क्यों? क्योंकि वो हमें फ्री मिला है. सो हम अपनी सिर्फ 10% कैपेबिलिटीज पे काम करते हैं. मेरा यहां पर सिर्फ कहना है ये लॉ ऑफ नेचर है. जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी में आप कोई चीज ऊपर से फेंकेंगे तो हमेशा नीचे ही गिरेगी, ग्रेविटेशन हमेशा उसको खींचेगी. ये सिद्धांत है और इसको कोई नकार नहीं सकता. इसी तरीके से हमारा जीवन का भी एक सिद्धांत है, व्हाट यू सो शैल यू रीप. आप जो भी बोएंगे वही आपको वापस मिलने वाला है. तो आपको अगर अपने जीवन में कुछ मालूम है, पाना है, तो एक काम कर दीजिए, यहां पर लिख लीजिएगा. आज का ये असाइनमेंट है आप लोग सभी के लिए. आप सभी ने अपने गोल्स लिख रखे होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, बिकॉज JCI पीपल आर वेल इन्फॉर्म्ड, दे आर वेल ट्रेन्ड. यही सबसे, ये हम लोग इसीलिए बोलते हैं वी आर एक्टिव सिटीजन्स. तो आप लोगों ने तो कर ही रखा होगा, लेकिन ये काफी नहीं है. अगर आपने अपने गोल लिख रखे हैं, अपना मिशन ऑफ लाइफ, अपना पर्पस ऑफ लाइफ आप जानते हो, तो आपके देखिए कभी आप माइंड में जाएंगे ना, वहां बहुत बड़े बड़े डंपर्स और ट्रक्स चलते हैं, बहुत बड़ी अर्थ मूवर मशीन्स होती हैं. वो मशीन बहुत हैवी होती हैं, बड़ी बड़ी चट्टानों को उठा के फेंक सकती हैं, बड़ी बड़ी चट्टानों को अपने अंदर रख के दूसरी जगह फेंक के आ सकती है. लेकिन उस मशीन के अंदर एक छोटा सा 5 फुट का ड्राइवर बैठा होता है जिसके हाथ पैर भी पतले होते हैं, और वो बड़े आराम से उस मशीन को एक जगह पर ले जाकर उसका जो भी पर्पस होता है, चाहे वो सामान भेजना हो या किसी चीज को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना हो, वो कर देता है. वो मशीन अकेले कुछ नहीं कर सकती अगर उसका ड्राइवर सही नहीं है. ठीक इसी तरीके से हमारी जो ये मशीन है, इसका ड्राइवर है हमारा माइंड. अगर हमारे माइंड को हम सही तरीके से यूटिलाइज करना नहीं जानते हैं, तो हमारी मशीन चाहे कितनी भी मजबूत, कितनी भी भीषण, कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हम इसका कुछ नहीं कर पाएंगे. और इसीलिए हमें अपने मशीन के ड्राइवर की पोजीशन पे सही रोल अदा करना है, क्योंकि हमारी जो सोच है ना, ये 2 धारी तलवार है. ये हमें बना भी देती है, हमें बर्बाद भी कर देती है. हम 2 चीज हैं जो हमारी सबसे बड़ी एसेट है, हमारी मेमोरी और हमारा इमेजिनेशन. लेकिन हमारे दुखों का सारा कारण हमारी मेमोरी और हमारा इमेजिनेशन है. हम वो इमेजिन नहीं करना चाहते जिससे हमारा भविष्य बन सकता है. हम भविष्य में क्या तकलीफें आ सकती हैं उनको इमेजिन करके दुखी होते रहते हैं. हमारे पास्ट में जो ऑलरेडी गुजर गया है, जो ऑलरेडी पास्ट हो चुका है, उस चीज के दुखों को आज भी महसूस करते रहते हैं. इसलिए मेमोरी हमारा दुश्मन बन जाती है, इसलिए इमेजिनेशन हमारा
दुश्मन बन जाती है, क्योंकि हम इमेजिन कर लेते हैं ओ माय गॉड कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं ये तो नहीं हो जाएगा, और उस इमेजिनेशन से जो हमें पावर के रूप में दी गई थी उसको हम अपना खुद का ऐसा हथियार बना लेते हैं जिससे हम खुद को हार्म कर रहे हैं। सो ये एक वास्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है, और आपको करना क्या है, हमारे पास जो कुछ भी आज है और जहां पर भी हम पहुंचना चाहते हैं, आपका पूरा विश्वास होना चाहिए कि आप उसको अचीव कर पाएंगे। आपके पास एक विजुअलाइजेशन की पावर है, आप उसको यूज कीजिए। आंखें बंद कीजिए, उसको विजुअलाइज कीजिए, विजुअलाइज करके बिलीव कीजिए कि ये आपके साथ हो रहा है और आप इसको कर पाएंगे। अपने अंदर वो इमोशंस बिल्ड कीजिए कि आप उस चीज को पूरा करने में सक्सेसफुल हो पाएंगे। और एक काम यहां आज करना है आप सभी को, जो भी आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर अपने बच्चे का करियर, आपका खुद का करियर, पैसा, हैप्पीनेस, रिलेशनशिप, हेल्थ, जो भी कुछ, एक सबसे इंपॉर्टेंट, वन एट ए टाइम, एक ही समय पर एक ही चीज, एक कार्ड बनाइए, बहुत खूबसूरत है, इतना बड़ा, विजिटिंग कार्ड के साइज का। ठीक है, बहुत सारे लोग इंग्लिश सीखने जाते हैं तो उनको एक चीज सिखाई जाती है कि आपको एक कार्ड पे वो शब्द लिखना है जो आज आपको याद करना है, करेक्ट? ऐसे ही एक छोटा सा विजिटिंग साइज का एक कार्ड बनाइए और उस कार्ड पे लिख दीजिए कि आप अपनी जिंदगी से क्या चाहते हैं। मैं 30 दिन की एक्सरसाइज दे रहा हूं आपको, 30 डेज, यू हैव टू डू इट कंटिन्यूअसली फॉर 30 डेज। अगर आप इस चीज को 30 डेज में पूरा करते हैं और 30 डेज के लिए पूरा कर लेते हैं, आज ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, मैं ऑन रिकॉर्ड कह के जा रहा हूं, अगर आप वो चीज को हासिल नहीं कर पाए तो आप जो चाहें वो कह देंगे, पर आपको करना होगा 30 डेज। दिस इज अ 30 डेज चैलेंज फॉर यू। प्लीज राइट डाउन ऑन अ कार्ड व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, व्हाट चेंज डू यू वांट इन योर लाइफ, और इस कार्ड को अपनी जेब में रख लीजिए, पर्स में रख लीजिए, और आपको दिन में 10 बार इस कार्ड को पढ़ना है। 10 बार, 15 बार, जब भी आपके पास ऑफ है, आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, सामने रख लीजिए, अपने लैपटॉप पे डाल दीजिए, अपने मोबाइल की स्क्रीन उस पे डाल दीजिए, जहां जहां पे भी जगह है, अपना कार्ड हमेशा सामने रखिए। और जब भी आप, मैंने मेरा मिशन बनाया है, आई वॉन्ट टू रीच मैनी कंट्रीज, मैंने अपना मिशन बनाया है, आई वॉन्ट टू रीच मैनी millions of people and I want to help them in achieving a fantastic, not just mental health but a positivity in life। ये करते करते मुझे पैसा, शोहरत, जो कुछ भी चाहिए वो तो मुझे मिल जाएगी, वो मेरा बाई प्रोडक्ट है, लेकिन वो मेरा मिशन नहीं है। अगर उसमें मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े उसके लिए मैं करने को तैयार हूं। तो ये आप लिख लीजिए, और ये लैंग्वेज कुछ इस तरीके से होगी कि इसको आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना है या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लिखना है। ऐसे लिखना है जैसे ये अभी हो रहा है। जैसे मान लीजिए आपका मिशन है या आपका इमीडिएट गोल है कि आप कुछ ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं या आप अपने करियर में कुछ करना चाहते हैं, तो आप लिख लीजिए आई एम अर्निंग दिस मच अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम सो एंड सो डेट, इतना सा लिख लीजिए। अब ये इसको और सिग्निफिकेंट कैसे बनाएंगे, लिविंग अ सिग्निफिकेंट लाइफ बाय हेल्पिंग अदर्स ऑल्सो। तो आप उसके अंदर कुछ सिग्निफिकेंस को भी डालिए, ठीक है, और स्टेटमेंट को लिखकर अपने जेब में डाल लीजिए। इसका एक फॉर्मेट भी है, आप नेट पे भी ढूंढ सकते हैं। वो कार्ड जो है वो आपका मैजिक कार्ड है, उसको दिन में 10 से 15 बार पढ़ना है, ठीक है, जैसे हम पानी पीते हैं, जैसे हम खाना खाते हैं, और इस दिमाग को प्रैक्टिस कराना है, याद कराना है कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, और ये होने वाला है, मतलब होने वाला नहीं, हो चुका है। जब हम ये हो चुका है ऐसा विश्वास करने लग जाएंगे, दिमाग को जब किसी झूठ को 100 बार बोला जाता है, अभी झूठ है आपको ऐसा लगता है, लेकिन जब वो कहा जाएगा तो वो उसको विश्वास करने लग जाएगा। आप उसको विश्वास दिला जी के ये होने वाला है, एंड रेस्ट लीव ऑन द यूनिवर्स, बिलीव मी। इसके ऊपर हमारी एक पूरी वेबिनार होती है, पूरा एक वर्कशॉप होता है कि कैसे हमारा माइंड वाइब्रेशंस छोड़ता है, उन वाइब्रेशन से कैसे रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस कोचिंग नहीं, रेजोनेंस होता है, रेजोनेट करके चीजें लाइफ में हमारे अट्रैक्ट होती हैं, कंडीशंस, इवेंट्स। तो अगर आपकी जिंदगी में आप बहुत अच्छा कर रहे हो इस समय पे, तो मैं आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा। आप सब हाथ ऐसे कीजिए और अपने आप को शाबाशी दीजिए। लेकिन अगर आपकी जिंदगी में कोई भी माइजरी है, कोई भी तकलीफ है, कोई परेशानी है, प्लीज इसको किसी को ब्लेम मत कीजिए, इसका क्रेडिट भी 100% आपको ही जाता है। तो आपकी जिंदगी में जो कुछ भी अच्छा है, कॉन्ग्रेचुलेशन, क्रेडिट गोज टू यू। लेकिन अगर कुछ भी खराब है, उसका क्रेडिट भी पूरी तरीके से आपको जाता है। जिस दिन आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे, उस दिन आप एक नए लेवल पर चीजों को देखना शुरू कर देंगे। तो यू शुड बी हैप्पी अबाउट व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ।
and you believe that what you want to achieve, you are going to achieve it in the target time, and you have already achieved it. You should have belief that you have already achieved it. जब आप माइंड को प्रोग्राम करेंगे, जब आप माइंड को ट्रेन करेंगे, एफर्मेशन करेंगे कंटिन्यूअसली, तो आपका माइंड हैक हो जाएगा, वो माइंड एक्शन लेना शुरू कर देगा. तो इसलिए हमारे को 3-4 चीजों पे काम करना है. पहला, इस पूरी का सक्सेस सीक्रेट क्या है? पहला सीक्रेट, वी बिकम व्हाट वी थिंक. हम वो बन जाते हैं जो हम सोचते हैं, जो हम बिलीव करते हैं. दूसरा, हमारे पास एक इमेजिनेशन पावर है, इसका इस्तेमाल कीजिए. अपने माइंड को इमेजिन करने के लिए हेल्प कीजिए. उसको बताइए कि वो क्या चाहता है, उसको बताइए कि आप अपने जीवन को कैसा चाहते हैं. अपना वो कार्ड कंटिन्यूस पढ़िए और उसको कंटिन्यूसली रिकॉल कीजिए. ये करने से कुछ समय बाद आपको ऐसा एहसास होने लग जाएगा कि आपके जीवन में वो होने लग गया है ऑलरेडी. 30 डेज चैलेंज है, याद रखिएगा, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं. दूसरी चीज, यूज ऑल योर करेज टू थिंक पॉजिटिव, और अपने उस क्लियरली डिफाइंड गोल के लिए काम करने के लिए हिम्मत जुटाइए. कभी भी आइडियल सिचुएशंस नहीं आएंगी लाइफ में. आइडियल सिचुएशंस के लिए वेट मत कीजिए. डोंट वेट फॉर सम ऐसी कोई सिचुएशन होने के लिए कि भाई कोई ऐसी चीज होगी, कुछ ऐसा दिन आएगा तब मैं ऐसा करूंगा ना. डोंट वेट फॉर आइडियल सिचुएशन. आइडियल थिंग्स डजंट एग्जिस्ट. स्टार्ट वर्किंग नाउ, just now. Don't wait for tomorrow. उसके बाद आपको आपका एक गोल कार्ड बनाना है, उसको लिख लेना है. जैसे आईडी कार्ड होता है वैसे लटका लो तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चश्मे की जगह पे. ठीक है. बेड पे जाने के समय, सुबह उठने के समय पर, जब जब पानी पीते हो उसके साथ उस कार्ड को एक बार देखना है. ठीक है. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर कहीं पे भी कोई निगेटिव थॉट आता है मन में, उस निगेटिव थॉट को इमीडिएटली रिप्लेस कर दो. आ रहा है. So so what I was saying is that if there is a negative thought in your mind, think about it. सर एक क्वेश्चन था. I'll come to the questions. 15 मिनट मैंने क्वेश्चंस के लिए छोड़े हैं. सर ये मैं कह रहा था, अभी नेगेटिविटी के दौर में, अभी आई एम कमिंग टू द क्वेश्चन आंसर्स. मनोज जी प्लीज हैव पेशेंस. 5 मिनट और रुक जाइए. यस. आपका क्वेश्चन लिख लीजिए. अगर एक क्वेश्चन है तो 2 और लिख लीजिए साथ में, ताकि कोई क्वेश्चन बचे नहीं. मैं सभी सवालों का जवाब दूंगा आपके. ओके सर. तो मेरा कहना है यहाँ पे यह है कि आपके दिमाग में अगर कोई भी नेगेटिव थॉट आ रहा है, इट्स जस्ट अ थॉट, इट्स जस्ट अ पिक्चर. आपका दिमाग हर चीज को पिक्चर्स के रूप में स्टोर करता है. अगर आप आंखें बंद करेंगे और किसी अच्छी चीज के बारे में सोचेंगे तो एक पिक्चर आपके सामने आएगी. अगर आप खराब चीज के बारे में सोचेंगे तब भी आपके दिमाग में एक नेगेटिव थॉट की एक पिक्चर आएगी, क्योंकि हमारा माइंड पिक्चर्स के फॉर्म में सुनता है, देखता है, और वो सारी चीजों को स्टोर करता है. आप जो कुछ भी सुन रहे हैं, जो कुछ भी देख रहे हैं, वो आपके सबकॉन्शियस में स्टोर होता जाता है. अगर टाइम अलाउ करता तो मैं शायद आपको ये एक्सरसाइज भी कराता. ठीक है. तो हमें अगर नेगेटिव कोई भी थॉट आता है तो उसकी पिक्चर को तुरंत एक एम्पावरिंग इमेज के साथ रिप्लेस करना है. आपके माइंड में एक थॉट हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा. सी व्हाट यू थिंक, व्हाट यू आर सीइंग. आप कौन सी पिक्चर देख रहे हैं, क्या होने वाला है. उस पिक्चर की जगह एक एम्पावरिंग पिक्चर जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, उसको रिप्लेस कर दीजिए. ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे मैंने मैजिकल रिजल्ट्स देखे हैं. चीजों को कुछ ही मिनटों में बदलते हुए देखा है, और अगर मौका आएगा तो यहां पर मैं आपको वो करके भी दिखाऊंगा. इसको अगर आप कर लेते हैं, यू स्टार्ट रिप्लेसिंग योर पिक्चर्स, नेगेटिव थॉट्स, कीप योरसेल्फ चार्ज्ड अप एंड एम्पावर्ड. और एक लास्ट बात, यहां पर जाकर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा. ये मैंने अपने बुक सक्सेस स्ट्रैटेजीज डिकोडेड में भी डाला है. एक बहुत यूनिक सी आइडिया है, बहुत यूनिक सी थॉट है एक्चुअली. एक बहुत बड़ी शेयरिंग मैं आपसे कर रहा हूं. जब मैं स्टीव जॉब्स के बारे में पढ़ रहा था, मैं उनसे बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हूं. मैं उनको एडमायर करता हूं, उनको फॉलो करता हूं. स्टीव जॉब्स को मैं जब पढ़ रहा था तो
मैं ये सोचता था कि हाँ, हम लोग एक एक काम करने में थक जाते हैं यार। एक जरा सा बिजनेस शुरू करते हैं तो हमें लगता है कि पता नहीं हमने पूरी दुनिया को, मतलब पूरा ब्रह्मांड की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास आ गई, इतना थक जाते हैं। ये लोग कैसे कर पा रहे हैं इतनी कम उम्र में, इतने कम क्वालिफिकेशन के साथ, इतने कम संसाधनों के साथ, ये इतना बड़ा काम कैसे कर पाए? मैं इनके बारे में पढ़ रहा था। बहुत सारी चीजें थी, इनोवेशन था, क्वालिटी थी, लीडरशिप थी, ये सब चीजें तो आपने सुनी हुई है। मैं आपके साथ एक नई शेयरिंग करने वाला हूं। यू नो, जब स्टीव जॉब्स अपनी आखिरी यात्रा पे जाने वाले थे, उन्हें मालूम था क्योंकि उनको कैंसर था। जब उनकी आखिरी यात्रा पे जाने वाले थे तो उन्होंने इस पूरी यात्रा के लिए खुद प्लानिंग की थी कि कौन कौन इस यात्रा में आएगा। उन सबके नाम लिखे हुए थे, उनकी लिस्ट थी, और उन सबके लिए गिफ्ट बनवाया था उन्होंने, जिसका नाम दिया उन्होंने ब्राउन बॉक्स। ये ब्राउन बॉक्स एक ऐसा गिफ्ट था जो उन्होंने, स्टीव जॉब्स ने अपने आखिरी जर्नी में आने वाले हर व्यक्ति को गिफ्ट करना था। और उस बॉक्स में आप जानते हैं क्या था? उस बॉक्स में आईपॉड नहीं था, आईटैब, आईफोन नहीं था। उस बॉक्स में था Autobiography of a Yogi by Paramhans Yogananda. When he was facing his tough time, somebody suggested him to come to India and meditate and learn the things from a different perspective. और यहां पर आकर उन्होंने एक ऐसा एस्पेक्ट सीखा जो वो दुनिया को मैसेज के रूप में देके जाना चाहते थे, और वो एस्पेक्ट था पावर ऑफ इंट्यूएशन, कनेक्टिंग टू द हायर सेल्फ। हम जो कुछ भी अपने दिमाग से सोचते हैं वो बहुत लिमिटेड होता है, लेकिन इस दुनिया में कुछ लिमिटेड है ही नहीं, सब कुछ एबंडेंट है। लेकिन उस एबंडेंट माइंडसेट के साथ कनेक्ट होने के लिए आपको एक नए तरीके से सोचना होगा। क्या करना होगा? यू हैव टू यूज योर इंट्यूटिव पावर्स जो आपको ऑलरेडी मिली हुई है। इसके लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना। कुछ चीजें हमारे को ना, जैसे हमारा कंप्यूटर आता है तो उसके हार्डवेयर के साथ डॉस प्रीलोडेड होता है, वैसे कुछ सॉफ्टवेयर हमारे अंदर मशीन के साथ प्रीलोडेड मिले हैं। उनमें से एक पावर है इंट्यूटिव पावर, इंट्यूएशन जिसको हम बोलते हैं। वो इंट्यूटिव पावर आपको क्या करती है? आप उसे अपनी आत्मा की आवाज कह सकते हैं, आप उसको आपकी अंदर की आवाज कह सकते हैं, आप उसे ईश्वर की प्रेरणा कह सकते हैं, आप उसे प्रेरणा कह सकते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं वो आपकी चॉइस है। लेकिन जब आप अपने खुद के गाइड बन जाएंगे, अपने खुद के कोच बन जाएंगे, और अपने आप को उस इंट्यूटिव पावर से कनेक्ट करके ये जानना सीख जाएंगे कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, आपको किसी दूसरे गाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू आर योर बेस्ट गाइड, बिकॉज दिस एंटायर यूनिवर्स इज विद यू टू हेल्प यू इन वॉट एवर यू आर डूइंग। बिलीव मी, दिस इज अ ट्रूथ। सो अगर दुनिया के इतने बड़े बड़े लोग इस चीज को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तो हम भारतीय लोग जिनकी ये परंपरा है, हम इसको क्यों ना सीखें, क्यों ना समझें? ये एसेंशियल है। और एक आखिरी बात और कहना चाहूंगा, सेव 10% ऑफ व्हाट यू अर्न एंड प्लीज यूज इट फॉर द पीपल। ये ना पूछिए कि देश ने आपके लिए क्या किया, नेताजी ने क्या किया, एमपी ने क्या किया, एमएलए के लिए क्या किया, मत पूछिए। ये बताइए कि आपने इस किसी भी एक व्यक्ति के लिए क्या किया, बस यही इंपॉर्टेंट है। सेव 10% एंड शेयर। क्योंकि दुनिया में अगर आपको सच्ची खुशी मिलेगी तो वो लेने से नहीं मिलेगी। द जॉय ऑफ गिविंग, दैट इज द रियल जॉय। आपको खुशी मिलेगी सिर्फ और सिर्फ देने से। तो देने की प्रवृत्ति बनाइए, चीजों में से कमियां निकालना छोड़ दीजिए, खोट देखना बंद कर दीजिए, और ये देखिए कि एक चीज जिसको आप बदल सकते हैं वो है, अपनी तरफ जरा ऐसा अंगूठा कीजिए ना, मेरे साथ बोलिएगा, एक चीज जो हम बदल सकते हैं वो है ये, और कुछ नहीं। और अगर हम इस चीज को बदलने के लिए तैयार हैं तो इस वेबिनार का पर्पस सार्थक है। थैंक यू वंस अगेन आशिमा जी, ऑल द डिग्निटरीज, मैम, एंड यहाँ पर जेडपी सर आए थे, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। I can see a lot of people here. Thank you so much, all of you, for inviting me, giving me this opportunity to share my thoughts with you. And I thank you, Poonam Goel ma'am, for being here as a guest. Thank you so much, Sir. all of you.
all the participants. Thank you so much. Sir, when Over I to told Ashima ji. Sir, when I told my mother-in-law that you are coming, so she was like, definitely, अगर ऐसी बात है तो विनय जी आ रहे हैं तो हम जरूर सुनेंगे. And I must tell you that my husband has also joined, and all of my family members, lot of my family members have joined this sessions. और through the time, जैसे ही मैं session सुन रही थी, तो अभी लोगों के बीच बहुत सारे questions हैं. पहले questions को ले लेते हैं. मेरे पे मैंने भी कुछ points लिखे जो मुझे आपसे discuss करने. Let other people discuss first. I would like to invite Manoj Prajapati to ask his question now. सर मेरा क्वेश्चन ये था, सुन पा रहे हैं सर? बिल्कुल, हाँ बोलिए सर. वो जैसे अभी नेगेटिविटी का एनवायरनमेंट बना हुआ है भाई, हाँ बोलिए, आपका सवाल पूरा कीजिए. मनोज सर, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है क्लियर. कैसे सर इसको आगे दोबारा बोलो. आप एक का क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए, आपकी आवाज क्रैक कर रही है. सर ये नेगेटिविटी का दौर का एनवायरनमेंट बना हुआ है अभी पूरे कोटा में, जैसे राजस्थान में, इंडिया में, तो उसमें सर हम पॉजिटिव थिंग को कैसे आगे बढ़ाएं, या फिर उसको माने, या फिर उस नेगेटिव थिंग को आगे लेके आगे बढ़े? आपका क्वेश्चन पूरा हो गया? हाँ सर. पहली चीज तो यह है कि पॉजिटिव नेगेटिव माहौल नहीं बना हुआ है. अगर नेगेटिव माहौल बना हुआ है तो मेरे अपने दिमाग में बना हुआ है. बिलीव मी, मेरे अंदर कोई पॉजिटिव माहौल नहीं है, नेगेटिव माहौल नहीं है. मैं पूरी तरीके से पॉजिटिव और बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूं. और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो काम हमने पिछले 100 साल में नहीं किया है वो अगले 10 सालों में करेंगे, इतने पोटेंशियल के साथ. क्योंकि जब किसी इंसान को है ना बहुत शक्ति के साथ पानी में डुबाया जाता है ना, तो उससे कई गुना शक्ति से वो बाहर निकलता है. इसलिए ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव माहौल को जाने दीजिए जहां जाना है, आप अपने दिमाग में मत आने दीजिए. आपके पास कंट्रोल है अपने माइंड का. प्लीज बहुत ज्यादा व्हाट्सएप मत पढ़िए, बहुत ज्यादा फेसबुक मत देखिए, बहुत सारे टीवी चैनल्स मत देखिए, एनालिसिस मत कीजिए पेंडेमिक को. ये काम हमारा नहीं है. आपका काम है कि आप क्या कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, सिर्फ कंट्रीब्यूट कीजिए. अपने कंट्रीब्यूशन से इस माहौल को सकारात्मक बनाइए. आपको देखिए, एक पानी में एक इंक की ड्रॉप डालें तो पूरी काली हो जाएगी, ठीक है, और उसके बाद उसमें बहुत सारा पानी मिलाएंगे ना, तब जाके वो वापस नॉर्मल हो पाएगा. तो एक बूंद को नेगेटिविटी के अपने इस पॉजिटिव माहौल में मत गिरने दीजिए. ये काम हमारे पास है. और मैंने अभी थोड़ी देर पहले की बात बोली, हमारे पास सिर्फ एक ही चीज बदलने के लिए है, वो है हम. और अगर आप अपॉर्चुनिटी माइंडसेट को देखना चाहते हैं तो मैं आपको ऐसी हजारों अपॉर्चुनिटी बता दूंगा. और एक बात लास्ट, कई लोग रोते हैं, कई बार लोग दुख मनाते हैं, अरे साहब बहुत नुकसान हो गया बिजनेस में, और ये तो बहुत सब गड़बड़ हो गई, और ये क्या नेता कर रहे हैं, क्या ये कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ढिमकाना कर रहे हैं. बहुत सारे कंप्लेंट्स होते हैं हमारे. ओके, मैं यहाँ पे एक ही बात कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर आपके घर के सभी लोग स्वस्थ हैं, अगर आप हेल्दी हो और खुशकिस्मती से अभी जिंदा हो, तो आपसे ज्यादा खुशकिस्मत यहां पर कोई नहीं है. बिलीव मी, अगर आप जिंदा हैं, आपका सब कुछ चला गया तो भी आप सब कुछ वापस कमा लोगे. लेकिन अगर जिंदगी नहीं रहेगी तो किसके लिए कमाओगे मेरे भाई? तो इसलिए प्लीज कीप योरसेल्फ सेफ. दैट इज व्हाट आई से. इफ यू हैव योर लाइफ यू विल अर्न एवरीथिंग. इफ यू लूज योर लाइफ यू विल लूज एवरीथिंग. सो इंपॉर्टेंट है. आई होप मनोज जी, मैंने आपके सवाल का जवाब दिया. मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि पॉजिटिव रहना ये एक स्टेट ऑफ माइंड है, ये एक माइंडसेट है, और इसको आपको कल्टीवेट करना पड़ेगा. जैसे हम घर में पौधों में फूल पत्ते उगाते हैं ना, वैसे आपको अपने अंदर इस पॉजिटिविटी की फसल को उगाना पड़ेगा, इसके बीज डालने पड़ेंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. थैंक यू. तो वो अपना नाम चैट बॉक्स में लिखें, जैसा आप चाहें. यू कैन आस्क द क्वेश्चन थ्रू चैट आल्सो. हाँ, और आप इसमें भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं. सर, हमारे इस सेशन में हमारे पास प्रेसिडेंट्स भी आए हैं सर. आशीष चौधरी सर आए हैं, और गोस्वामी सर आए हैं, एंड आई गेस सर वो कुछ लोग आके जा भी चुके हैं. हाँ, कोई बात नहीं. And like lot of people are listening and lot of people are actually hearing and lot of my staff members are also here. और मुझे लगता है कि आपकी पॉजिटिविटी से मुझे इन सबको मिले ना मिले मुझे ग्रोथ मिल जाएगी. Thank you so much. So I am very on a positive side and positive note towards it. Anybody has a question to ask?
आप विश्वास कर सकते हैं, मैं आपकी हर प्रॉब्लम को बहुत मतलब प्रॉपर सोल्यूशन के साथ आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, अगर जरूरत होगी तो आई कैन हेल्प यू आल्सो, बिलीव मी सर। एंड ऑल्सो लाइक आई वाज जस्ट अमेज्ड कि आपने इस पूरे सेशन को एक साइकिल बना दिया था। आप हमें एक लिंक से दूसरे लिंक पे लेके जाके एंड हैव एक्सप्लेन थिंग्स इन अ प्रॉपर मैनर दैट वी कैन एक्चुअली वर्क नो इन अ पॉजिटिव थॉट कि हाँ भी हम इस काम को इस तरह से कर सकते हैं। So I think, sir, for all the statements, all the words you have utilized during this session, I will be definitely using it for my learnings, for my establishment, for my upcoming things, and we are looking you so forward much. for your physical appearance with us. Hope this pandemic goes off early and we finish this time at home as soon as possible. And personally, हम My सब pleasure, आपसे मिल all the सकें. time. जी. Sir, we have Sushil sir also, who's our VP Management. Yes. Now I would request our Secretary Chanchal Saxena ji to give vote of thanks. Thank you, ma'am. May I audible? Yes, sir. Yes, sir. Thank you, all the dignitaries here. Vinay sir, आपकी मैं बहुत टाइम से आपकी NLP भी ज्वाइन करी है मैंने, और काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स भी मैं आपकी देखता रहता हूँ। अब तो अभी हम 1.5 साल से वेबिनार पे ही हैं, और बड़ा दिल था आपसे मिलने का बहुत दिनों के बाद। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि आपकी स्माइल में ही इतनी पॉजिटिविटी होती है कि उसे देखते ही जो है वो नेगेटिव एस्पेक्ट जो होते हैं आसपास के, वो बहुत दूर भागने लगते हैं। थैंक यू सो मच। एनीवे, thank you, sir, once again. Thank you so much. I hereby adjourn this meeting. Thank you so much, sir. Thank you so much once again. डांटते हैं तो हम you are zero. Thank you, ma'am. तो आज पता लग रहा है कि ये भी एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। Yes. क्योंकि हाँ, मैंने ये टाइटल इसीलिए रखा है क्योंकि जीरो को अगर आप नंबर के पीछे रख दोगे तो वो जीरो है, और नंबर के आगे रख दोगे तो वो आपको एक बहुत बड़ी फिगर बना के दे देता है। काउंटिंग वहीं से स्टार्ट होती है। बिल्कुल, आज अपने माइंड, जैसा कि आप हमेशा करते हैं, माइंड के अंदर तक घुस जाते हैं। बिल्कुल, आज आपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज दिमाग से क्लियर कर दी है। जीरो रियली में एक अपॉर्चुनिटी है। जो आपने एग्जाम्स कोट किए, जो एग्जाम्पल्स आपने दिए, वो हमें रियली इंस्पायर करते रहेंगे। मैं थैंक्स करना चाहता हूँ सारे पार्टिसिपेंट्स का, आपके बिलीव का कि आप JCI से जुड़े हुए हैं और ये इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं। डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉजिटिविटीज को लेकर आएगी इस दौर में, खास तौर से जब हम बहुत टेंस हैं, नहीं समझ पा रहे हैं कि आगे लाइफ का मोटिव क्या रहेगा, क्या मोड होगा, कब तक ये ठीक होगा। ऐसे टाइम पर ये वैल्यूएबल ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप सबके बिलीव के लिए मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक्स करता हूँ लॉट ऑफ। थैंक यू लॉट। थैंक यू। लास्ट में टू एक और चीज रह गई है कि मैं ये देख रही थी कि हमारे पास प्रेसिडेंट है भुवनेश गोस्वामी सर, वो पूरे सेशन में जुड़े रहेंगे हमारे साथ में। ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सर कि वो इस पूरे सेशन में मेरे साथ, और इस पूरे सेशन को सुना है उन्होंने। तो सर मेरे ख्याल से आपकी भी फैन फॉलोइंग है। हमारे बहुत सर ये मेरे ख्याल से आपकी भी फैन फॉलोइंग है कि we are having our past presidents here in this session and they are all listening with us, with their families, and I'm very grateful to you once again. Thank you so much sir. Thank you so much for all of you। जो आप लोग आए, आपने मेरी बात को सुना। Thank you so much. Thank you.